गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था। ये जो मोर वाला चैप्टर था ना बच्चों, वो सिखाया था। उसमें जो हमारे अभ्यासक्रम के बारे में हमने सीखा था ना कि अभ्यास पुस्तिका में और हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें हम कैसे लिखते हैं, राइट बच्चों। तो वो वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, हमारा चैप्टर नंबर 8 पेड़ खड़े हैं, राइट। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पेड़ खड़े हैं मतलब कि बच्चों कि जो पेड़ होते हैं, આપણે જે ઝાડ જોઈએ છે બરાબર, એ કેવા ઊભા હોય છે એકદમ અડગ થઈને। શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય, ઉનાળો હોય, કોઈ પણ ઋતુ હોય બાળકો, એવું થોડું થાય છે કે શિયાળો આવે છે તો ઝાડ હોય છે એ ઓઢી લે છે, એવું નથી હોતું ને। શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય, ચોમાસું હોય, ગમે એટલી ગરમી હોય, ઠંડી હોય, તડકો હોય, તો પણ ઝાડ પાન એકદમ અડગ થઈને ઊભા રહે છે, રાઈટ બાળકો। તો આપણે ઝાડ પાસેથી શું શીખ મળે કે મુસીબતની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે પણ આપણે હિંમત નહીં હારવાની, एकदम અડગ જ રહેવાનું, રાઈટ। पेड़ खड़े हैं का मतलब भी यही होता है कि पेड़ जैसे खड़े हैं हर सिचुएशन में, मतलब कि हर हालात में, हर परिस्थिति में हमें भी वैसे ही एकदम अडग खड़े रहना है, राइट बच्चों। तो बच्चों, आपने पेड़ तो देखा ही होगा, कैसे कितने पार्ट्स होते हैं पेड़ के, चलो बताओ मुझे। पेड़ के कितने पार्ट होते हैं। पहला शू आवे झाड़ में, एक थड आवे, राइट। थड होय, मूळ होय। पहला मूळ थी आपणे शुरुआत करी बाळको। पहला मूळ होय, पछी थड होय, पछी थड मांथी जुदी जुदी डाळीओ निकळती होय, डाळीनी अंदरथी पण जुदी जुदी डाळीओ निकळती होय, पछी डाळमां પાંદડા आवेला होय छे, पछी પાંદડાमां फूल लागेला होय छे, फूल होय छे, पछी फळ लागेला होय छे, राइट बाळको। तमे अहींया चित्रमां तो जोवो ज छो झाड़, जोयुं बाळको तमे झाड़ केवुं होय छे, तमे बधाए झाड़ तो जोयुं ज हशे। झाड़मां घणा बधा पक्षीओ आवीने बेसता होय छे, पछी एना छायानी नीचे કેટલા બધા મુસાફરો આવીને આરામ કરતા હોય છે, ઘણા માર્ગ ઉપરથી રસ્તામાંથી મજૂરો નીકળતા હોય છે। તો જ્યાં વધારે વૃક્ષ હોય ત્યાં એ લોકો શું કરે છે, એના છાયામાં બેસીને વિશ્રામ કરે છે, मतलब કે આરામ કરે છે, રાઈટ। પછી જે આ પશુ પક્ષીઓ હોય એના ફળ ખાઈને પોતાનું પેટ ભરે છે, રાઈટ બાળકો। તો ઝાડ હોય છે એ આપણને ઓક્સિજન પણ આપે છે। તમે વિચારી લો બાળકો કે ઝાડ જ ન હોય તો આપણને ઓક્સિજન કેવી રીતના મળે કોઈ દિવસ ન મળે। હવે ધીમે ધીમે માણસો પોતાના સ્વાર્થ માટે મોટા મોટા બિલ્ડિંગ્સ ઊભા કરવા માટે ઝાડ પાનનો વિનાશ કરતા જાય છે, જંગલને કાપી અને ત્યાં પોતાના મોટા મોટા ફ્લેટ બનાવતા જાય છે। એટલે હવે જંગલોનો ધીરે ધીરે વિનાશ થતો જાય છે, તો પશુ પક્ષીઓની સંખ્યામાં પણ દિવસે દિવસે ઘટાડો થતો જાય છે। તમે જોયું હશે કે હવે ચકલીઓના આપણે ઓલા તૈયાર માળા મૂકીએ છીએ આપણે ઘરે, રાઈટ। તો પહેલાં એવું ન કરવું પડતું બાળકો। એક શેરી હોય તો એમાં ઝાડ વધારે સંખ્યામાં હોય તો માળા મૂકવાની જરૂર જ ન પડે બાળકો। પહેલાંના સમયમાં ચકલી ઘરે ઘરે માળા બનાવતી, કબૂતરના માળા હોય, પછી સુગરીના માળા હોય, રાઈટ। તો આવા જુદા જુદા માળા પક્ષીઓ બનાવતા જ રહેતા હોય છે। ઝાડ હોય તો બનાવે જ ને બાળકો, કારણ કે ઝાડ એનો વિસામો હોય છે। આપણે પણ વિસામો ખાઈ છે ને બપોરે, તો પશુ પક્ષીઓને પણ ખાવા જોઈએ છે વિસામો, રાઈટ। તો પક્ષીઓ પહેલાં માળા એવી રીતના બનાવતા, પણ હવે આપણે ચકલીઓનો ધીરે ધીરે વિનાશ થતો જાય છે, મતલબ કે ચકલીઓ ઓછી થતી જાય છે। હવે તો તોય ચકલીઓ જોવા મળે છે આપણને, પણ પહેલાં વચમાં સાવ ચકલીઓ જોવાતી જ બંધ થઈ ગઈ હતી। આપણો ચકલીઓ મને લાગે છે કે ધીરે ધીરે દેખાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે બાળકો, કેમ કે હવે આપણે માળા મુકતા થઈ ગયા છીએ, રાઈટ। તો માળામાં તો એ ચકલીઓ ઓછા માળા બનાવે છે, પણ તોય પણ કોક વખત એમાં ચણક તો ખાવા માટે આવે જ છે, રાઈટ બાળકો। તો આપણે પાણીના કુંડા, પક્ષીઓના માટે માળા, આ બધું ઝાડમાં ટીંગાડવું જોઈએ કે જેથી એ
આવી જાય, રાઈટ બચ્ચો. તો હવે હું તમને એના શબ્દાર્થ એક્સપ્લેન કરી દઉં કે શબ્દાર્થ આપણે આપણા કાવ્યમાં આવવાના જ છે. તો શબ્દાર્થ એક્સપ્લેન કરીશ તો તમને એ હાર્ડ વર્ડ છે એ અઘરા નહીં લાગે. શબ્દાર્થમાં આપણે આ શબ્દ આપેલા હોય છે આપણા કાવ્યમાં અને અહીંયા એનો અર્થ સમજાવવામાં આવેલો હોય છે, રાઈટ. સર મતલબ કે સિર, આપણે જે આ માથું હોય છે એને કહેવાય सिर. अनोखे अनोखी तो उसका मतलब होता है विशेष, सबसे अलग और हटकर. अनोखा मतलब कि बधाथी जुदू हो, सबसे हटकर होता है, तो सबसे विशेष होता है, उसको लिए कहा गया है अनोखा अनोखी. अमलतास, अमलतास मतलब કે એક ફૂલનું નામ છે, બરાબર. અમલતાસ નામનું એક ફૂલ હોય છે, બરાબર. નિર્ઝર મતલબ કે ઝરણા, ઝરણા મતલબ કે ઝરણું, ઝરણાને નિર્ઝર પણ કહેવાય છે. આ બધા આના સમાનાર્થી શબ્દો થયા છે, રાઈટ બાળકો. इठलाती मतलब कि नखरे करना, कोई कोई लड़की ऐसी होती है बहुत नखरे करती है, बहुत इठलाती रहती है, तो हम कैसे कहते हैं कि देखो कैसे नखरे कर रही है, तो उसके लिए एक शब्द और भी कहा गया है इठलाना, मतलब कि नखरे करना, राइट बच्चों. तो ये सब शब्दार्थ ना अपने दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में मैं MCQ में या ट्रू फॉल्स में या ब्लैंक्स में किसी भी तरह से मैं आपको ये शब्दार्थ पूछ सकती हूँ बच्चों. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. हाँ, इठलाती तो मतलब कि नखरे करना. फिर आता है कोटर, तो पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग. कोटर का मतलब क्या होता है कि पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग, उसको कहते हैं कोटर, राइट बच्चों. पेड़ के तने में मतलब कि पेड़ होता है, उसके पेड़ની અંદર ઝાડની અંદર તમે જોજો એક બખોલ હોય છે, એને પક્ષીએ કોતરીને અંદર એક એવો પોલાણવાળો ભાગ બનાવી દીધો હોય છે, એને કહેવાય કોટર, રાઈટ. ખોખલા મતલબ કે આમથી દેખાય આપણને એકદમ આખું, બરાબર, આમ એકદમ મોટું દેખાય, પણ આમ આપણે ઠક આમ ઠક આમ કરીએ તો અંદરથી અવાજ આવતો હોય, એવું પોલું હોય, પોલાણવાળું હોય, બરાબર. આ ઇંકની આ જે પેન છે, બરાબર, આમ દેખાવમાં આપણને આખી છે પણ અંદરથી કેવી હોય છે, પોલી. ત્યારે તો આપણે અંદર ઇંક ભરી શકીએ છીએ ને બાળકો. તો ઝાડમાં એવું હોય છે કે કોટરનો મતલબ એમ થાય કે અંદર એક પોલાણવાળો ભાગ બની ગયો હોય, જે પક્ષીએ કોતરીને અંદરનો જે માવો હોય બધો કોતરી નાખ્યો હોય, પછી બહારથી આમ આખું જાડું મોટું થડ જ દેખાતું હોય, પણ હોય કેવું, એકદમ પોલું, રાઈટ બાળકો, એને કહેવાય कोटर. फिर आता है चिड़ैया, तो चिड़ैया का मतलब होता है चिड़िया नाम का पक्षी, मतलब कि जो चिड़िया होती है चकली ने कहवाय चिड़ैया, चिड़ैया मतलब कि चिड़िया. फिर मस्ती, तो मस्ती का अर्थ क्या होता है बच्चों? यस, खुशी, आनंद, बेपरवाही. बेपरवाही मतलब कि किसी की परवाह नहीं हो, हम जब अपने में आ जाते हैं तो तब हम किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी ही धुन में होते हैं, उसको कहते हैं मस्ती, राइट बच्चों. तो अब आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या कहने वाली हूँ मैं. ये पेड़ खड़े हैं चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप पेड़ के बारे में तो सब जानते ही हो, क्योंकि आपने सभी ने पेड़ तो देखे ही है. हमारे घर के आसपास कई सारे पेड़ होते हैं, हम अपने घर पर भी पेड़ पौधे लगाते हैं ना बच्चों, तो उसको समझना तो और आसान हो जाएगा. हमारी पोयम का नाम है वो तो आपको पता ही है कि पेड़ खड़े हैं, राइट. तो बच्चों अब इस पोयम को शुरू करने से पहले आप पेड़ों के सारे पार्ट के बारे में तो जान गए हो ना, राइट. तो ये जड़ है, ये उसका आधार है, मतलब કે આપણે જેને થડ કહીએ ને એ, અને આ એના, રાઈટ બાળકો. હવે આપણે પોયમ શરૂ કરીએ, રાઈટ. पेड़ खड़े है घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर. पेड़ खड़े है बच्चों मतलब के झाड़ ऊभू छे. क्या ऊभू छे बाळको? यस, झाड़ क्या ऊभू छे? घरनी एकदम बहारू, मतलब के आपणा आंगणामां झाड़ होय ने वावेलुं. घणाय फळियामां वावे छे, तो घणाय फळियानी बहार मतलब के आपणे जे शहेरी के सोसायटी होय ने त्यां वावे छे, राइट. पेड़ खड़े है घर के बाहर, जड़े है गहरी ऊंचा सर. ऊंचा सर मतलब के झाड़ एकदम ऊंचू होय, बराबर. तो उसका सर मतलब के सिर,
यहाँ पे आया आया था ना शब्दार्थ में, मतलब કે ઝાડ છે એકદમ ઊંચું છે, રાઈટ। એની જड़ मतलब કે આ મૂળ છે એના એકદમ ગહેરા, मतलब કે એકદમ બહુ જ ઊંડા છે, રાઈટ। એના મૂળ ક્યાંય ક્યાંય સુધી ફેલાયેલા હોય છે। જડે હે ગહરી, એકદમ ગહેરી, मतलब કે બહુ જ ઊંડાણમાં એના મૂળ ગયેલા હોય છે। पेड़ खड़े है घर के बहार, जड़े है गहरी ऊंचा है सर, एना मूળ एकदम ઊંડા છે અને એ કેટલું ઊંચું થયું છે, બહુ જ ઊંચું થયું છે। ऊंचा है उसका सर, सर मतलब કે આ ઉપરનું આ જે રહ્યું ને ઈ સર, राइट बच्चों। खेल है इनके धूप छांव के और खिलौने बादल सूरज। बच्चों यहाँ पे पेड़ का खेल दिया गया है, तो पेड़ का खेल कौन सा है, ये धूप छांव का। कभी धूप होती है तो कभी छांव होती है, मतलब कि जब सूर्य बहुत तपता है तो धूप होती है और जब अस्त हो जाता है तब छांव हो जाती है, राइट। तो खेल है इनके धूप छांव के, मतलब के જ્યારે એકદમ તડકો પડતો હોય ત્યારે ઝાડની નીચે બેસવાથી આપણને એકદમ છાંયડો મળે છે, અને બહુ જ તડકો હોય અને ક્યાંય પણ આપણને મજા જ ન આવતી હોય ને આપણે છાયાની શોધ કરતા હોય તો આપણે ઝાડ નીચે જઈએ તો આપણને કેવી મજા આવે છે। તો ખેલ હે ઇનકે ધૂપ છાંવ કે, મતલબ કે આ એક રમત રમે છે ધૂપ છાંવની। આપણે પણ રમતો રમીએ છીએ ને બાળકો, તો ક્યારેક સંતા કુકડી રમી છીએ, તો ક્યારેક પકડમપટ્ટી રમી છીએ, રાઈટ। તો આ ઝાડ પાન પણ રમે છે। और खिलौने बादल सूरज, पेड़ के खिलौने कौन से है बच्चों, ये बादल और ये सूरज इसके खिलौने हैं, राइट। और उसका खेल कौन सा है, उसका खिलौने मतलब કે એના રમકડા છે એ આ સૂર્ય અને વાદળ છે। પછી એની રમત કઈ છે, ધૂપ છાવની, ઘડીક છાંયો તો ઘડીક તડકો, રાઈટ બાળકો। સમજાઈ ગયું તમને આ એક પોયમ ને આખો એક પેરેગ્રાફ, यस। रंग अनोखे गंध अनोखी अमलतास का पीला निर्जर। सभी पेड़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उसके फल अलग होते हैं, फूल अलग होते हैं, कलर उसका अलग होता है, मतलब कि रंग अनोखे। આપણે પણ બધા વ્યક્તિઓ એક સરખા થોડી ના હોય છે, આપણે આ 5 આંગળીઓ છે બરાબર, તો એકબીજાથી સેમ છે નહીં ને, બધી જુદી જુદી છે। જો બધાની હાઈટ અલગ અલગ છે, બધાનો શેપ જુદો જુદો છે, રાઈટ બાળકો। તો કોઈ વ્યક્તિ એવું જોઈએ કે જેની 5 આંગળીઓ સેમ ટુ સેમ હોય, मतलब એક જ હાઈટમાં હોય, ન હોય ને। તો ઝાડપાન પણ કેવી રીતના સરખા હોય બાળકો, राइट। रंग अनोखे गंध अनोखी, मतलब कि उसका कलर भी एक दूसरे पेड़ से अलग होता है और उसकी गंध भी अलग होती है। आपने कभी देखा कि जो खुशबू गुलाब में आती है वही खुशबू आपको मोगरे में आती हो, ऐसा कभी देखा बच्चों, नहीं ना। तो जो खुशबू गुलाब में होती है वो किसी और फूल में नहीं होती, और किसी और में जो खुशबू होती है वो गुलाब में नहीं होती बच्चों। तो सभी के कलर अलग अलग है, सभी के सुगंध, सभी की सुगंध भी सब पेड़ से अलग ही होती है। अमलतास का पीला निर्जर, अमलतास मतलब कि एक प्रकारનું फूल હોય છે અને એનું ઝરણું, निर्जर का मतलब होता है झरना, राइट। निर्जर मतलब कि झरना, આપણે જે ઝરણું જોયા છે ને, પાણીનું ઝરણું જાતું એમ ખડખડ 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 વહેતું જાતું હોય, રાઈટ બાળકો। પીલા निर्जर, અમલતાસનું કેવું ફૂલ હોય છે, પીળું, અને એને કહેવામાં આવ્યું છે કે અમલતાસનું પીળું ઝરણું, રાઈટ। તો ક્યાંક બહુ ઝાઝા બધા અમલતાસના ફૂલ ઉગેલા હોય, તો એના માટે આમાં કવિએ કીધું છે કે, કવિ નથી સોરી કવિયત્રી છે, એને એમ કીધું છે કે આ ક્યાંક અમલતાસના ફૂલ ઉગ્યા છે, તો ત્યાં એકદમ ઝાઝા બધા ઉગ્યા છે, તે એમ લાગે કે જાણે અહીંયા પીળા કલરનું ઝરણું જ વહીને જાતું હોય, રાઈટ બાળકો। जैसे सूरज बह रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर, मतलब કે પીળા કલરના ફૂલ તે એટલા બધા પ્રમાણમાં ઉગેલા હોય બરાબર, કે એટલા બધા પ્રમાણમાં ઉગેલા હોય તો જાણે કે એમ જ લાગે કે સૂરજ અહીંથી વહી રહ્યો છે, मतलब કે सूरज बह रहा हो। जैसे सूरज बह रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर, धूप की अपनी किरणें सुंदर,
मतलब के आ सूर्य होय बराबर, मानी लो के आ झाड़ छे बराबर, एनी उपर वादळा छे बराबर, तो त्यां एक सूर्य उग्यो छे बराबर, तो आ एनी आ बधाई छे एना किरण, आ बधा एना किरणो छे, राइट बाळको। तो ई किरणो धरती पर पड़े छे, पछी पीड़ा फूल पर पड़े छे, तो एम ज लागे के जाणे सूर्य वही रह्यो छे। तो आ सूर्यनी किरणो पण केवी होय छे बाळको, बिलकुल सुंदर होय छे, पण ज्यारे बहु तपी जाय त्यारे त्यारे आपणने त्रास थई जाय छे बाळको, राइट। इठलाती डाली गुलमोहर की नाच रही है फूल पहनकर। इठलाती डाली मतलब कि नखरे करती डाली, मतलब कि उसकी डाली कैसी होती है, एकदम नमणी होय छे। गुलमोहरनी फूल तो तमे जोयो ज हशे ने बाळको, एकदम रेड कलरनुं होय, पछी गणपति दादाने बिल्कुल प्रियमां प्रिय फूल होय तो ए गुलमोहरनुं होय छे। तो बाळको इठलाती डाली गुलमोहर की मतलब कि उसकी डाली कैसी है बच्चों, एकदम नखरे करती, मतलब के एकदम नमणी होय छे, नखरा करती, आमथी तेम झूलती झूलती रहती होय छे। नाच रही है फूल पहनकर। गुलमोहर की डाली पर फूल आते हैं। गुलमोहर का पेड़ होता है ना बच्चों, बड़ा वाला होता है, उसके पेड़ पर, उसकी डाली पर जब गुलमोहर के फूल आते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे नाच रहे हैं, क्या पहनकर, फूल पहनकर। पेड़ के बारे में ही है बच्चों सब कुछ डाली के बारे में आएगा, पेड़ की पत्तों के बारे में आएगा, उसके फूल के बारे में आएगा, फल के बारे में आएगा, राइट। तो जो कुछ भी यहाँ पे कहा गया है वो सब कुछ पेड़ के बारे में ही है, राइट। इठलाती डाली गुलमोहर की नाच रही है फूल पहनकर, तो वो क्या कर रही है, फूल पहनकर जैसे नाच रही हो, मानो ऐसा लग रहा है। लाल ओढ़नी उसकी देखो चमक रही है घर आंगन पर। लाल ओढ़नी मतलब कि लाल ओढ़नी क्यों कहा गया है बच्चों, पेड़ तो हरे कलर के होते हैं, पर उसके ऊपर गुलमोहर के पेड़ के ऊपर रेड कलर के फूल आते हैं बच्चों। तो कई सारे पेड़ पे फूल आ जाते हैं, तो जैसा ऐसा लग रहा है कि वो लाल कलर की ओढ़नी पहनकर पूरे आंगन भर में चमक रही हो। जैसे लाल कलर कैसा होता है बच्चों, एकदम ब्राइट होता है, तो कोई भी पहन कर आता है ना तो हम उसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव कलर है। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा कहा है कि जो गुलमोहर का ये पेड़ है वो लाल ओढ़नी ओढ़कर पूरे आंगन भर में चमक रहा है, मतलब कि एटला बधा फूल एमां आवी गया छे, तो जाणे एम ज लागे छे के आ गुलमोहरना झाड़े एकदम लाल कलरनी चुंदड़ी ओढ़ीने एकदम चमकी रह्યું છે, राइट। एक गिलहरी भी रहती है इनके एक कोटर के अंदर। एक गिलहरी भी रहती है बच्चों। गिलहरी का मतलब क्या होता है बच्चों, खिसकोली। यस, खिसकोली तो तमे बधाए जोया ज हशे बाळको। खिसकोली केवी होय, एकदम क्यूट होय, જ્યારે જોવો ત્યારે ઉછળતી કૂદતી જ રહેતી હોય, રાઈટ। તો ઝાડની એક કોટરનો મતલબ મેં તમને કીધો જ હતો કે એક પોલાણવાળો ભાગ હોય ઝાડમાં, એમાં ઝાડ બહારથી તો એકદમ ઝાડનું તંદુરસ્ત જ દેખાતું હોય, પણ એને અંદરનો ભાગ એકાદો પોલાણવાળો હોય, કોકે કોતરીને પશુ પક્ષીઓ બનાવ્યો હોય। तो एना एक कोटार मतलब के पोलाणवाड़ा भाग में पेड़ के कोटर का मतलब होता है कि पेड़ के तने, એટલે કે पेड़ झाड़नी अंदर पेड़ के तने में हुआ एक खोखला भाग मतलब एकदम पोलाण वाळो। पोलू होय ने वासड़ी जोई छे बाळको तमे बधाए, यस, वासड़ी बारथी एकदम केवी होय, एकदम मजबूत, पण तमे ज्यारे एने पछाडो आवी रीतना तेमांथी अंदरथी अवाज केवो आवे बाळको, यस, पोलो आवे। એટલે એમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે એક ખિસકોલી હોય છે એ આ ઝાડના પોલાણવાળા ભાગમાં રહેતી હોય છે, રાઈટ। આ ખિસકોલીઓ તો ઝાડ ઉપર જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે, રાઈટ ને બાળકો। सारा दिन खाना ढूंढती अंदर बाहर अंदर, मतलब कि वो खिसकोली होती है, मतलब कि जो गिलहरी होती है वो क्या करती है, ये पूरा दिन यही तहीं से खाना ढूंढती रहती है।
कभी वहाँ से खाना ले आती है तो कभी यहाँ से ले आती है, तो सारा दिन वो अंदर बाहर बाहर अंदर ऐसे होती रहती है। मतलब पेड़ के ऊपर चहल पहल होती ही रहती है। कोई पशु आते हैं, कोई पक्षी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, फिर आराम करने आते हैं, राइट बाળકો। तो ऐसी चहल पहल पेड़ के ऊपर होती ही रहती है। और चिड़ैया भी तो आती, चिड़ैया मतलब यस मैं तुमने कीधु तू, चिड़ै का मतलब होता है चिड़िया नाम का पक्षी होता है चकली। આપણે જેને ચકલી કહીએ ને બાળકો એને કહેવાય चिड़ैया चिड़िया यस। और चिड़ैया भी तो आती है सुबह शाम इनकी डालों पर, पेड़ की डालों पर पहले गिलहरी आती है, फिर चिड़ैया आती है मतलब कि चकली। चिड़ैया का मतलब होता है चिड़िया यस। वो सुबह शाम आती है, सुबह भी आती है और पूरा दिन बाहर रहती है, मतलब कि खाना ढूंढती है, कहीं पे वो अपना घोंसला बनाती है। तो वो शाम को क्यों आ जाती है? अपने घोंसले में विश्राम करने के लिए, राइट बच्चों। चिड़ैया भी तो आती है सुबह शाम इनकी डालों पर मतलब कि डाल पर उसने घोंसला बनाया होता है, तो वो वहीं आ जाती है शाम को। शाम को हम भी तो अपना घर लौट जाते हैं ना बच्चों, कितना भी काम हो क्यों ना हम पूरा दिन थक जाते हैं, पर हम भी तो शाम को अपने घर लौट आते हैं। वैसे चिड़ैया भी अपने घर लौट आती है। ये पशु पक्षियों का कोई घर नहीं होता बच्चों, ये पेड़ को ही अपना घर बना लेते हैं, तो वहीं जाकर उसको सुकून मिलता है, राइट। कौ कौ चूं चूं करते रहते कौवे बुलबुल बोल कबूतर। कौ कौ मतलब कि यह पक्षियों की आवाज दी गई है। कौ कौ चूं चूं करते रहते कौवे बुलबुल और कबूतर। कबूतर को आप जानते हो बच्चों, बुलबुल को भी आप जानते होंगे क्योंकि बुलबुल नाम का एक पक्षी होता है। कौवे मतलब कि कौवा, राइट। कौवे के जैसा ही एक पक्षी होता है, वो सारा दिन कौ कौ चूं चूं ऐसे आवाज निकालते ही रहते। मतलब कि आप पेड़ के पास जाओ, बहुत घना पेड़ होता है, तो वहाँ पे ऐसे पक्षियों की आवाज आती ही रहती है। आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं डाल पर कोई पक्षी बैठा ही होता है, राइट बच्चों। जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है, यस। हम भी तो मस्ती में आ जाते हैं ना बच्चों। जब बारिश की पहली बूंदें हमारे सर पर गिरती है तो हम कैसे खुशी से झूम उठते हैं, तो वैसे ये लोग भी खुश हो जाते हैं बच्चों। सारे पशु पक्षियों में आनंद से छा जाता है, वो भी मस्ती में आ जाते हैं, राइट। तो जब भी बारिश आती है तो ये लोग कैसे हो जाते हैं? एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। इसके चेहरे पर एकदम प्रसन्नता छा जाती है, सब पर मस्ती छा जाती है। मस्ती छा जाना मतलब कि एकदम खुशी छा जाती है, आनंद आ जाता है। सबसे बेपरवाह हो जाते हैं, मतलब किसी की परवाह नहीं करते हैं। जब भी बारिश आती है तो वो लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। उसे लगता है कि हाँ ये गर्मी तो चली गई अब, राइट। धुलकर निखरे हैं सबके रंग, मैं भी भीगू इनके संग संग। धुलकर निखरे है मतलब कि શિયાળાના 4 મહિના, ઉનાળાના 4 મહિના, मतलब કે કુલ 8 મહિના, રાઈટ બાળકો। તો આ 8 મહિનામાં વરસાદ થયો જ ન હોય, બરાબર। તો બધે ધૂળ ને બધું છવાયેલું હોય, પણ જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે કેવા થાય છે? એકદમ બધા ધોવાઈ જાય છે। ધુલકર નિખરે હે સબ કે રંગ। ધુલકર मतलब કે બધું ધોવાઈ જાય। ઝાડ હોય, બરાબર, તો એના તમે પાંદડા જોવો ઉનાળામાં કે શિયાળામાં, તો એના પાંદડા પર થોડી થોડી ધૂળ હોય, રાઈટ। વાતાવરણની ધૂળ એમાં ચોંટતી હોય, પછી પવન આવતો હોય, તો મતલબ કે એમાં ધૂળ બહુ છવાઈ ગયેલી હોય। પણ પછી શું થાય છે કે વરસાદ આવે તો એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાય, રાઈટ બાળકો। એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાય એટલે એનો રંગ પણ નિખરી જાય, मतलब કે એના રંગમાં પણ નિખાર આવી જાય, राइट बाળકો। आप भी जब नहा लेते हो तो आप कैसे अच्छे लगने लगते हो, राइट। पूरा दिन बीत जाता है और आप सुबह जब नहाते हो तो कैसे फ्रेश हो जाते हो। तो ये लोग भी नहा धोकर जैसे फ्रेश हो गए वैसे धुलकर सब निखर जाते हैं पेड़। मैं भी भीगू इनके संग संग, मतलब कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है बच्चों। एक लड़की है आनंद से झूम रही है, वो गिलहरी भी पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। और ये जो कवित्री है मोनिका, उसका अपना मंजुल है, वो कह रही है कि धुलकर निखरे है सबके रंग, तो क्यों ना मैं भी इनके संग संग ही भीग जाऊँ। संग संग मतलब कि उसके साथ में ही मैं भी उस मस्ती का आनंद उठा लूँ, राइट बच्चों। तो ये थी हमारी पोयम।
इस पोयम में हमने जो पेड़ के आसपास का जो वातावरण है और पेड़ के आसपास के जो मौसम में बदलाव होते हैं और जो पशु पक्षियों के मन में भी बदलाव होते हैं उसके बारे में कहा गया था। राइट बच्चों, तो अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो लेक्चर में। उसमें मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे पार्ट 1 है तो यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो अभ्यास होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। राइट, तो तब तक के लिए बाय।